आज अपन डिस्कस करेंगे दैट इज कौन सा कैटेगरी, एंटीकोलिनर्जिक्स। आज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर what are anticholinergic and what other names for the anticholinergic, that is muscarinic receptor antagonist as well as atropinic agents as well as parasympatholytic agents. How these names are described and why these name as like that parasympatholytic, atropinic agent or muscarinic receptor antagonist, I have cleared all things in a previous class. Okay, अब अपन बात करेंगे today's classification, means classification of anticholinergics. Okay, this is all about the classification. I will explain each and every structure. Try to learn with me. जैसा कि मैं आपको कुछ ना कुछ क्लू बताऊंगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट वन कैटेगरी है हमारी सोलेनियसियस एल्कलॉइड एंड देयर एनालॉग्स। सोलेनियसियस एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? एल्कलॉइड्स इन प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू alkaloids are a molecule or compound which are obtained from plants and basic in nature, insoluble in water and have a physiological or pharmacological action in a particular human being or animals. Okay, that are known as the alkaloids. Here atropine is the major source or major prototype, we can say prototype drug, that is, what is the meaning of prototype drug? Meaning of prototype drug is that which which leads the whole pharmacological action of particular category or particular drug category. Okay, means atropine have a whole pharmacological action as per anticholinergic drugs. That's why this, it counted as atropine as a prototype drug. Okay, here it is the aster. Okay, this is the aster, this is link is the aster, and this atropine is the structure, ester of tropine and tropic acid. That is what is the component of these? This one is tropine and this one is the tropic acid. That's why it is known as a ester, means it is a ester. Chemically these are ester or the chemically another category of alkaloid. Okay, this is the natural, and these are another one, these two both are the semi synthetic, that are analog of these alkaloids. Means here some different home atropine, again it is the ester as discussed here. After this part is the ester one, and this is different. Here OH group is there and here CH2 OH group there. That's why it is home atropine and it is the atropine. Okay, but pharmacologically these are similar in action. Okay, similarly ipratropium bromide, it is the basically salt. Whenever PM word means nitrogen have a quaternary condition. Here nitrogen is a quaternary condition, means EM is indicates the nitrogen quaternary condition. Isopropyl, this ring is, this part is the isopropyl, that is ipro. Ipra means isopropyl ring, and tropine, this one is the tropic acid. This part is the tropic acid. Okay, I think you can clear everything. Ipratropium bromide. Ipratropium means ipro मतलब isopropyl. Tropium means tropic acid. EM means nitrogen have a quaternary condition. Bromide it is salt. Okay, this is the ipratropium bromide. This is all about what a category. Now come to the structure. Second category, that is amino alcohol ethers. Amino alcohol esters. Sorry, esters means see. Alcohol esters, ester link is this one, the ester, R this one, R is a functional group, R1 is the another functional group, R1 is this one and R2 this one. Clear? First come to the clidinium. See, amino alcohol
मीन्स यहाँ पे आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एमिनो मतलब नाइट्रोजन होगा, अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप होगा। मीन्स देखना, एमिनो का मतलब यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन होगा, अल्कोहल का मतलब यहाँ पे OH ग्रुप होगा, उनको हम साथ में एस्टर तो है ही, एस्टर आपका ये लिंकेज हो गया। तो ये सारा का सारा कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा एस्टर तो हमारे है, बाकी हमारा एक अल्कोहल ये आ गया और नाइट्रोजन ये आ गया, हमारी चीज कंप्लीट होती है। यहाँ पे क्लीडिनियम का मतलब हो गया, यहाँ पे अगेन ईनियम वर्ड आ रहा है, मतलब नाइट्रोजन क्वाटरनरी कंडीशन में ईनियम आ गया, और यहाँ पे जो पार्ट आता है इसको दैट इज क्लीडिन यूनिट होता है, इसको हम क्लीडिन यूनिट बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज क्लीडिनियम। ओके, नेक्स्ट वन द साइक्लोपेंटोलेट। साइक्लोपेंटोलेट अगेन यहाँ पे OH ग्रुप आ गया और यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, जो इस ग्रुप का रिक्वायरमेंट था। सिमिलरली देखना साइक्लोपेंटोलेट ये हो गया साइक्लोपेंटोलेट, साइक्लोपेंटेन हो गया कि नहीं हो गया, ये साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन इसको कहेंगे, साइक्लोपेंटेन हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन है, और सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रोजन और एमिनो ग्रुप आ गया, OH ग्रुप आ गया, इस तरह से इसका नाम साइक्लोपेंटोलेट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा डाइसाइक्लोमीन। डाइसाइक्लोमीन में अगेन वही चीज आ रही है, OH ग्रुप यहाँ पे आ रहा है और नाइट्रोजन ये वाला आ रहा है, नाइट्रोजन ये वाला आ रहा है जिसमें ये वन, ठीक है। तो डाइसाइक्लोमीन का मतलब देखना, दो साइक्लो ग्रुप है, एक ग्रुप ये आ गया, दूसरा ग्रुप ये आ गया, डाइसाइक्लो हो गया, इस तरह इसलिए हम डाइसाइक्लोमीन बोलते हैं। जनरली ये एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए यूज होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए यूज होता है, या यूं कहूंगा एब्डोमिनल पेन के लिए यूज होता है, पेट में जो दर्द होता है उसके लिए जनरली इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये डाइसाइक्लोमीन हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट ड्रग है ग्लाइकोपाइरोलेट। ग्लाइकोपाइरोलेट से समझ में आ रहा होगा, अगेन इसमें OH ग्रुप है, यह आ गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से ध्यान रखना ये 5 मेंबर है और नाइट्रोजन है, तो इसको हम इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, पाइरोल। इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, पाइरोल। पाइरोलेट से याद रखना पाइरोल, पाइरोलेट वर्ड है, पाइरोलेट वर्ड है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन क्वाटरनरी कंडीशन में है और पाइरोल रिंग सिस्टम है। ओके, दिस दैट्स व्हाई इट इज द ग्लाइकोपाइरोलेट। दिस इज ऑल अबाउट सेकंड कैटेगरी अल्कोहल एस्टर्स। ओके, कैटेगरी दैट इज एमिनो अल्कोहल एस्टर ईथर, सॉरी meaning of ether oxygen having double single bond in like this। यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों तरफ इस तरह का लिंक होगा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो कार्बन होंगे, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, दोनों तरफ कार्बन होंगे उस फॉर्म को हम बोलते हैं ईथर। ओके, साथ में क्या होगा, एमिनो ग्रुप होगा और अल्कोहल का ईथर बन जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा ध्यान रखिएगा, एमिनो ग्रुप होगा मतलब नाइट्रोजन होगा, अल्कोहल का ईथर बना हुआ है, तो देखिएगा एमिनो ग्रुप आपके पास ये है और अल्कोहल का ये ईथर बन गया। ओके, ये हो गया जिसको बेंजट्रोपिन बोलते हैं। बेंजट्रोपिन इसको हम क्यों बोलते हैं, लगभग एट्रोपिन जैसी ही स्ट्रक्चर है, इसमें बेंजीन अलग से एक और जुड़ गया, इसलिए हम इसको बेंजट्रोपिन बोलते हैं। एट्रोपिन का ये वाला स्ट्रक्चर था, एट्रोपिन का यही वाला पार्ट आ रहा, OH आ गया, लगभग ये स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें एक बेंजीन और जुड़ गया, इसलिए हम इसको बेंजट्रोपिन बोल रहे हैं। थोड़ा सा कोरिलेट करना इस स्ट्रक्चर से एट्रोपिन के, बेंजट्रोपिन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें दूसरा ड्रग आता है, कौन सा दूसरा ड्रग आपका ये आता है, डाइफेनहाइड्रामीन। देखना अगेन इसमें एक नाइट्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन होगा जिसमें ध्यान देना दो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, जिस तरह से इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ईथर हो गया, ये ईथर का एग्जांपल हो गया। सिमिलरली ये भी ईथर का एग्जांपल हो गया। कैसे, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है और एक कार्बन इधर, दूसरा कार्बन इधर, तो वो ईथर लिंकेज हो गया। ओके, सेम यहाँ पे दो बेंजीन ये है, एक बेंजीन ये है, एक बेंजीन डाइफिनाइल, डाइफिनाइल हो गया, हाइड्रामीन हो गया, एमीन, ये ग्रुप एमीन और हाइड्रामीन, इस तरह से इसको हम डाइफेनहाइड्रामीन बोलेंगे। ओके, तो ये हमारे दो ड्रग हो गई जिसकी बेंजट्रोपिन एंड डाइफेनहाइड्रामीन कौन सी कैटेगरी की, एमिनो अल्कोहल ईथर्स। ओके, ये हमारी दो कैटेगरी को। नेक्स्ट डी कैटेगरी अपन आते हैं, कौन सा, एमिनो अल्कोहल्स। एमिनो अल्कोहल्स में ध्यान देना
दो फंक्शनल ग्रुप होंगे एमिनो अल्कोहल में, दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक तो नाइट्रोजन होगा, एक OH ग्रुप होगा, इनको हम एमिनो अल्कोहल बोलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे एक OH ग्रुप ये हो गया, एक नाइट्रोजन ये हो गया, सिमिलरली एक OH ग्रुप ये हो गया, एक नाइट्रोजन ये हो गया, हम इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एमिनो अल्कोहल्स। ओके, बाईपेरिडीन का मतलब देखिएगा, बाईपेरिडीन में देखना दो बाईसाइकिल, बाई का मतलब बाईसाइक्लोफोम हो गया, ये बाईसाइक्लो, और ये वाला पेरिडीन रिंग सिस्टम है, इसलिए हम इसको बाईपेरिडीन बोलते हैं। ये बाईसाइक्लोफोम हो गया और पेरिडियम फॉर्म हो गया ये वाला, इसलिए इसको हम बाईपेरिडीन बोलते हैं। बाई फॉर बाईसाइक्लोफोम, रिंग फॉर्म बाईसाइक्लो, और पेरिडीन मींस यहाँ पे पेरिडीन आ गया। क्लियर। दूसरा आता है प्रोसाइक्लिडीन। प्रोसाइक्लोडीन से ध्यान रखना, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेन हो गया क्या, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन। प्रोप से याद रखना प्रोपेन। साइक्लिडीन से याद रखना, साइक्ली का मतलब याद रखना साइक्लोहेक्सेन याद रखना। और ये वाला कौन सा पार्ट हो गया जिसको अपन बोलते हैं पायरोल का सैचुरेटेड फॉर्म है, तो इसको बोलेंगे पायरोलिडीन। तो आपको यहां से पायरोलिडीन याद रखना है, प्रो से याद रखना 3 कार्बन, साइक्ली से साइक्लोहेक्सेन याद रखना, लिडीन से याद रखना पायरोलिडीन फॉर्म। इस तरह से आपको प्रोसाइक्लिडीन आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया आपका मेजर कैटेगरीज, दैट इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स that are Solanus is first category, second amino alcohol is esters, second category, third category होगी amino alcohol ethers, और fourth category होगी amino alcohols। ओके, दिस इज लास्ट कैटेगरी। और उससे बात करेंगे दैट इज एमिनो अमाइड्स। एमिनो अमाइड्स मींस हमने क्या क्या पढ़ा, सोलेनियस एल्कलॉइड एंड एनालॉग फर्स्ट कैटेगरी पढ़ा, सेकंड वन द एमिनो अल्कोहल एंड एस्टर्स दैट इज, and third one amino alcohol ethers, fourth category that is amino alcohols, and next category is amino amides। means यहाँ पे amide और नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे amide नाइट्रोजन, ये आ गया नाइट्रोजन हो गया आपका, और amide लिंकेज है आपका ये वाला। ओके, दिस पार्ट इज द amide लिंकेज। तो ये हमारी कैटेगरी में बैठता है। तो हाउ इट इज ट्रोपिकेमाइड, दिस इज अ ट्रोपिकेमाइड मींस amide, here this part is the amide, this part is the amide, and this one the tropic acid, this was the tropic acid, means here tropic acid, that's why it is known as a tropicamide, means here it is the amide of tropic acid। okay, that is tropicamide। clear, that is amino amide comes under amino amides have an example of tropicamide। clear। come to the next miscellaneous category, that is last category of anticholinergic drugs, that is first drug ethopropazine। see this basic nucleus is the or this ring system is phenothiazine ring system, phenothiazine ring system। what is the meaning of phenothiazine? pheno means phenyl, thiazine means, see what is the meaning of thiazine here? Thiazine, just try to understand, thia for sulfur, aza for nitrogen, and ine for 6 members। see sulfur, nitrogen are in a 6-membered ring system, that is thiazine, and 2 phenyl group, one phenyl group and one phenyl group, that's why that is it comes under the phenothiazine। phenothiazine ring system है, इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना पाजीन वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाजीन? पाजीन मींस phenothiazine। अगेन फिर उसके बाद में ध्यान देना, इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, ईथो से याद रखना यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप है, प्रोप से याद रखना यहाँ पे प्रोपाइल रिंग सिस्टम, प्रोपाइल चेन है, 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन है। ईथो का मतलब 2 कार्बन चेन, 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट आ गया, प्रोप से याद रखना 3 कार्बन आ गया, और जीन से याद रखना फिनोथायाजीन। इसलिए इसमें सारी चीज आ गया, कौन कौन सी, ईथो से 2 कार्बन 2 कार्बन चेन 2 कार्बन चेन आ गया, प्रोप से 3 कार्बन चेन 3 कार्बन चेन आ गया, जीन से याद रखना फिनोथायाजीन। ओके, इस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर याद करना है, किसका, इथोप्रोपाजीन, that comes under the anticholinergic drugs। okay, come to the last drug, that is papaverine। papaverine is the alkaloid, again it comes alkaloid,
and it is found along with the morphine. It is the alkaloid and it is found with the morphine. That is the alkaloid. Alkaloid here nitrogen group. Nitrogen in this ring system known as isoquinoline. What is known as isoquinoline? Okay, and isoquinoline have papaverine have four methoxy group. Four methoxy group. That is the papaverine. This is all about the structure and the classification of anticholinergic drugs, or we can say parasympatholitic agents, or we can say atropinic agent. यहाँ पे यदि मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपके क्वेश्चन आता है क्या, डिस्कस या शॉर्ट नोट ऑन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, तो आपको जो मैंने क्लास में बताया पूरा का पूरा आपको लिखना है. ट्राई टू राइट द स्ट्रक्चर एज मच एज पॉसिबल. इफ यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज ड्रग यू विल गेट 100% मार्क्स, नो इश्यू. ओके, तो याद करने का मैंने थोड़ा थोड़ा तरीका बताया. जस्ट ये जो मैंने चीज बताई आप वो कोरिलेट कर लेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा. ओके